Hello, friends. A warm welcome to each one of you. A happy evening to all of you gathered here today on the stage and as well our virtual audience. Lots of love to India and to all the countries in the world. Today, on the International Fab Talk Show, we have a wonderful guest for all of us. To understand his journey, which has been vast and rich with full of different experiences, we would like to invite our special guest, that is retired Lieutenant Colonel Ashok Kumar Gupta. When we speak to him and understand his journey, it will just be a beautiful way of understanding how he has been able to conquer all his difficulties and emerge as a winner. Yes, sir, we welcome you today on our talk show. A warm welcome to you, sir. Thank you. I'm honored. Yes, sir. We'd like to introduce you formally to our audience and all the participants over here today. Dear team, let's understand how sir has, come through this journey of life. And how did he contribute to the society and what is he still doing for the youth of India and for, of course, each one of us. Sir, may I introduce you formally to the group, sir, and to the audience? Yeah, sure. Thank you, sir. Lieutenant Colonel Ashok Kumar Gupta was born on 24th February 1954. He retired as a Postmaster General in March 2013. He served in LIC as an assistant for 7.5 years from February 1972 to September 1979. And he is a life fellow of Insurance Institute India, a postgraduate in English. He has completed his diploma in management, diploma in French. He has a great passion and interest in astrology, physical and mental health, Ayurveda, yoga, meditation, world and Indian economy. Apart from that, he is very much, giving his time and energy to, collaborating and maintaining international relations, issues relating to the youth, employment, poverty, Indian history and culture. Apart from that, he focuses on time management, stress management, and much more. And dear friends, there's something more unique about our guest today. He has written a script and many dialogues for a Hindi movie. And dear friends, apart from that, our guest also acted in a TV serial of 5 episodes, and that was called as Asman Se Utra Sach. I repeat that, Asman Se Utra Sach, telecast on Doordarshan. And my friends, you'll be surprised to know that he has delivered over 100 talks on radio and more than 20 interviews on TV channels. After retirement, he settled in Jalandhar, Punjab, but shifted to Bangalore and is currently living with his children after the death of his wife about 2 years ago. He has a Facebook page called as Swastik Jyotish Kendra, followed by more than 64,000 people, a YouTube channel with the same name. And he has more than 130 videos and around about 30 short videos. And sir is very fond of Hindi films, old Hindi films, Hindi film songs. I'd like to repeat that. He's very fond of old Hindi film songs and he has a great interest in classical music. He loves children and he loves to solve issues regarding maids, domestic maids, and anybody who needs assistance. It could be the support staff, etc. He would like to help them and their families rise above the poverty line. And this is the specialty of our dignitary today. So we are really honored and very happy to know that you have such a rich background and experience. Welcome, sir. Thank you. This is my privilege. I'm honored. Thank you, sir. So sweet of you, sir, to be so humble, and thank you for accepting our invitation to be on the International Fab Talk Show. Sir, we now begin our interview session. How would you define yourself or describe that special person called as Mr. Ashok Kumar Gupta? कौन है Mr. Ashok Kumar Gupta? बताइए हम. Yeah, but I feel that I'm just a drop of water in a flowing river. ब्रह्मांड में एक कण
Out of billions of people, I'm just one having my journey. Nothing special about it, I think. Yes sir, but we feel you are really special. You're so humble. इतना सब कुछ हासिल करने के बाद में भी आप कह रहे हैं कि मैं बस आम इंसान हूँ, बस एक बूंद का पानी हूं मैं. दैट इज सो नाइस सर. बहुत बढ़िया. सर आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं सर? स्ट्रेस एक्चुअली बहुत कम होता है मुझे. कभी 20-22 साल की उम्र तक बहुत सोचता था, बहुत स्ट्रेस, आदत बन गई थी. जब मैंने पढ़ा इनके ऊपर, फिर मैंने अपने आप को ट्रेन किया, तो टेक थिंग्स प्रोफेशनली. जैसे एक पुराने जमाने में टेलीफोन ऑपरेटर प्लग करता था, एथलीट दौड़ता है, लेकिन वो स्ट्रेस में नहीं आता बिकॉज ही इज डूइंग इट. ऐसे ही काम करना है. वर्क इज समथिंग वी हैव टू डू. प्ले इज समथिंग वी वांट टू डू. If you make your work your play, you will never be under stress. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. वेरी नाइस वेरी नाइस. बहुत खूब सर. सर आप बचपन में कैसे थे? नटखट थे, शरारती, या बहुत ओबीडियंट थे? किस तरह के बच्चे थे आप? बच्चा मैं था ही नहीं कभी जल्दी से. मैं बुढ़ा था. लोग मेरे को बड़ी बड़ी बातें करता था, कोई मजाक उड़ाता था, और मेरे से 10-10, 15-15 साल बड़ी उम्र के मेरे से सलाह लेते थे. और मैंने तो कभी लड़की को देख के सीटी नहीं बजाई बचपन या जवानी में, अभी भी बजानी नहीं आती. ऑलवेज स्टडिंग, किताबें पढ़ने का शौक था. जिधर से जो मिला वो इकट्ठा किया, पढ़ते रहे. सोचना बहुत, दूर दूर की बातें सोचना, इमेजिनेशन, बहुत कल्पनाशील था मैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो उस 10-12 साल की उम्र में ये भूतनाथ, चंद्रकांता, संतति और मुंशी प्रेमचंद लिटरेचर, ये चीजें मैं पढ़ा करता था. 12, 14, 15, 16 साल की उम्र में मैं ये पढ़ता था. तो आई वॉज कंसिडर्ड वेरी सीरियस. Yes, sir. Very nice. So, did you read the Chanda Mama books? मैं, हमारी दुकान थी, फादर करते थे, तो रद्दी लेते थे सामान बांधने के लिए. तो मैं उनको जिद करता था कि मेरे लिए जो रद्दी लेनी है वो लो जो मैगजीनों में आती है. तो एक पेटी भर के वो लेते थे, चंदा मामा, पराग, और ये दूसरी आती थी उस वक्त, कितनी. और वो मैं खत्म कर देता था. वो मेरे घर वाले सब लोग कहते थे, खाता है या पढ़ता है. मैं 5, 7, 10, 15 में पेटी खत्म कर देता था. तो उनको था और लेके दो, और लेके दो, उनका एक्स्ट्रा खर्च ना हो. मैंने इतना पढ़ा, फिर मैं सपने में राक्षस लेके उड़ गया, राजकुमारी को बचाने गया. उससे लेकिन मुझे मिला, आई, मैं उससे लर्न ए लॉट. मेरी Great. रीडिंग बहुत फास्ट हुई, मेरी जनरल नॉलेज बढ़ी, कल्पना बढ़ी, ये कुछ लाभ भी मिले. Ji, ji. Yes, sir. That's a beautiful book called as Chanda Mama of the earlier years. Many of us enjoyed it, even I. And I got to know that sir also loved reading the Chanda Mama books and comics. So thank you, sir, very much. Sir, आपका inspiration कौन है, sir? एक्चुअली मैं किसी एक को नहीं माना. मेरा ये मानना है कि बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई है, और अच्छे से अच्छे में भी कमी है. हम अंधाधुंध किसी को फॉलो करने की बजाय, किसी व्यक्ति को फॉलो करने की बजाय, किसी की आइडियोलॉजी में से उसको फॉलो करें. और आई टेक ए मिक्स. कहीं कोई सात्विक है, कोई कहता है सच बोलो, महात्मा गांधी जी कहते हैं सच बोलो, आम आदमी के साथ कनेक्ट करो, सादी जिंदगी जियो. कोई विवेकानंद है, वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आत्मज्ञान. कोई वेदांता. मैं जो जो अच्छा जिससे है वो लेता हूं. मैं किसी को आइडियल नहीं मानता. मैं तो हाड़ मांस का इंसान है, सब गलतियां करने को. हम किसी को देवी देवता का दर्जा नहीं दे सकते. Very nice, sir. Very nice. Sir, how do you want to be remembered in the world? लोग आपको कैसे याद करें और क्यों याद करना है आपको, बताइए. थोड़ा सा कुछ, कोई पेड़ लगा हो, फल खाए तो उसको याद आए कि शायद पेड़ लगाया था किसी ने. मेरे को ये होगा कि जब मैं ना हूं, लोग कहें शायद एक अच्छा इंसान था. मेरे बारे में थोड़ी उनको अच्छी भावना हो. उनको लगे कि दूसरों के लिए, उनके लिए किया या नहीं किया, उनको लगे भी किसी का बुरा नहीं करता था, अगर हो सके थोड़ा बहुत अच्छा करता था, वेरी खुश रहता था और आसपास खुशी बिखेरता था.
जी सर, spreading happiness and as well as being happy all the time. That is sir's way of living, and that's how sir would love to be remembered as. Dear sir, which is your favorite holiday destination? छुट्टियों में कहाँ जाना चाहेंगे, या आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? वैसे कोई खास नहीं, पहाड़, मुझे जंगल बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे बच्चे साल में एक दो बार जाते हैं, 3-4 दिन जंगलों में किसी रिजॉर्ट में रुकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सही मायने में मुझे जब टाइम मिले, मैं तो चाहूंगा किसी झुग्गी झोंपड़ियों में, किसी गरीबों की बस्ती में 2-4 साथी साथ में लाइक माइंडेड मिल जाए, वहां तंबू गाड़ के बैठूं, कैंप लगा के, और वहां कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं, शाम को उनको कहानियां सुनाऊं। मेरा तो ये सपना होता है, मुझे वो मजा आता है करने। वाह, वेरी नाइस सर, ब्यूटीफुल सर, वेरी नाइस। वन मोर थिंग सर, अपने खुद में इन योर ओन सेल्फ व्हाट डू यू लाइक? अपने आप में, इन योर, विच इज द बेस्ट क्वालिटी इन यू? मुझे एक तो अच्छा लगता है अपने आप को अगर मैं देखूं, एक तो जानने की इच्छा, और ना मैं दुखी रहता हूँ ना किसी को दुखी करता हूँ, और मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। अब तो ये स्टेज आ गई जिंदगी में बढ़ते बढ़ते, कोई मेरा बुरा भी करे तो मेरे मन में उसके प्रति बुरे विचार नहीं आते। मैं तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो मुझे ये एक अच्छा लगता है कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, और मेरे पास से जो जिसकी किसी की मदद हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं हो सकता तो मैं क्षमा मांग लूंगा कि मेरे से नहीं हो सकता। तो मैं नेगेटिव नहीं मैं सोचता कभी भी, अच्छा सोचता हूँ दूसरों के लिए, अपने लिए। वेरी नाइस सर, बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी हम्बल ऑफ यू एंड वेरी पोलाइट ऑफ यू टू से दैट, दैट्स रियली नाइस सर। सर, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है सर? पिछले 30-40 साल में तो मैंने मूवी बहुत कम देखी है, लेकिन कुछ मूवी हैं, कोई ग्रैंड्योर के हिसाब से मुगले आजम, बैजू बावरा म्यूजिकल, पतिता स्टोरी पावरफुल, और कानून जैसी जो आर्टिस्टिक थी, दूर का फूल जो होलसम मूवी थी, दूर का फूल, हम दोनों। कुछ पुरानी मूवीज मुझे बहुत पसंद थी, अनारकली बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स। तो साधना, पुरानी मूवीज कुछ अच्छी लगती थी मुझे, ये वाली जिसमें म्यूजिक भी है, एक पावरफुल स्टोरी, वो मुझे अच्छी लगती थी। मदर इंडिया ऑफ ऑल आई लाइक, जो एक गांव की जिंदगी बताई हुई है जिसमें। ग्रेट, ठीक है सर। अभी आप क्या कीजिए ना, हमारे लिए छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे लिए एक छोटी सी गाना गा दीजिए। छोटी छोटी सी गाना, अ सॉन्ग। सॉन्ग। एक्चुअली मैं किसी फंक्शन वगैरह पे कम गाता हूँ, क्योंकि मेरे जितने गाने उदास हैं, और इतने पुराने लोग थे, बाबा आदम के जमाने का लाते हो। एक गाना मेरा फेवरेट है, के एल सहगल का गाया हुआ है। फिल्म शाहजहां 1946 की बनी थी, 1948 में रिलीज हुई, एंड 1947 के एल सहगल डाइट। ही बिलोंग टू द प्लेस, आई बिलोंग टू जालंधर पंजाब। वो मैं कुछ सुनाता हूँ। गम दिए मुश्किल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दाग लो उनसे ऐमान सलो, क्या सुनाना। हाय हाय ये जालिम जमाना, कोई मेरी ओ दाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, घुट रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुराना। हाय हाय ये जालिम जमाना। Beautiful, sir. Wonderful. Very good. Very nice. And you have so soulfully sung it. So nice of you. Thank you. And when you were singing, sir, you were immersed. आपकी आंखें आप खुद उसमें समेट गए. You were completely immersed into that beautiful song. Very nice. Thank you very much for obliging, sir. Thank you.
Sir, were you interested in sports and games as a youngster? Really speaking, didn't have the resources. And I was so fond of reading, I couldn't think of anything else. घर के काम भी करता था, कुछ पढ़ने का शौक था, और पढ़ने का अपनी पढ़ाई नहीं, सब कुछ दूसरा पढ़ता था। फिर भी साधन नहीं थे, तो गलियों में जो सस्ती गेम खेली जाती, गुल्ली डंडा, और पिट्ठू मारते थे पीठ पे एक दूसरे के, कंधे पे चल गए, झूठे देने पड़ेंगे, ये वो, इस तरह की गेम खेली हैं। कम गेम में मेरा इंटरेस्ट है। बैडमिंटन वगैरह था, बड़े हुए साधन हुआ तो बैडमिंटन वगैरह खेली, एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, किया बड़ा कुछ, पर बचपन में बहुत कम। जी सर। सर, संसार में कोई बदलाव लाना चाहेंगे आप, या खुश है जैसा है संसार वैसे अच्छी है, या आप और कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? बदलाव तो मैं समझता हूँ लाने की जरूरत है। हम अपना इस तरह से चलें जिंदगी में, भविष्य बेहतर बने, क्योंकि कुदरत बार बार वार्निंग सिग्नल दे रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं। हम कुदरत को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उसका दोहन करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, उसके पास कुछ बचा नहीं है। नींबू को ज्यादा निचोड़ दो तो कड़वा रस निकलेगा। कुदरत हमें कोविड की शेप में वार्निंग दी, 3 साल लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जुलाई का महीना नासा थिंक्स कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे गर्म महीना था। अगस्त का महीना 1901 के बाद, 1901 के बाद जब से रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, इंडिया में वाज द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट मंथ। हमें कुछ कुदरत में जिए, हम कुदरत के पास रहें, हम लोगों से मिले, लोगों को भूल गए। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया आ गया, कल्पना लोग में जी रहे हैं, हकीकत में है ही नहीं, ना परिवार के ना दोस्तों के। एक टच था जो अपनापन था, जो आनंद देता है, इसलिए एवरीवन इज लॉस्ट। गुमशुदा पशु की तरह इधर उधर घूम रहा है, उसको ना अपना मुंह से पैर पता है, बेत पता नहीं है। हम आसमान में पहुंच गए, अपनी जड़ पेड़ की वहां रह गई। कितना मर्जी पेड़ ऊंचा हो, जड़ तो जमीन में होनी चाहिए। हमें दुनिया वो चाहिए जिसमें हम कुदरत को देख सके, जिसमें हम महसूस कर सके इमोशंस, सेंटिमेंट, वो ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सके। ग्लैमर ही नहीं, रियलिटी देखे, हम किसी का दुख सुख बांट सकें, और अपने इसमें कोई दुख सुख महसूस नहीं होगा। वी कैन लिव हैप्पीली। Yes. Yes. Very nice. Very beautifully said, sir. Thank you for that, sir, very much. Sir, when do you plan to retire? तो रिटायर तो गवर्नमेंट ने तो रिटायर कर दिया 10 साल पहले, 60 साल की उम्र में कर देती है। जी जी। पर रिटायर क्या है? आई एम नादर टायर्ड नो रिटायर्ड। अरे जब तक जिंदा है तो जिएंगे। हम उसमें बैठ गए तो गया बंदा, इनएक्टिव हुआ। जीना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है, इसी में मजा है, इसी में जीवन है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिटायर कोई सही मायने में है। और जिंदगी मजा मैं भी ले रहा हूँ, और जब मैं जॉब में था तब भी लेता था। मैं लखनऊ में जब असाइनमेंट में था, रात को 9:30 10 बज जाते थे। कई बार तो ऑफिस में मुझे सुबह के 3 4 बज जाते हुए। पर जब मैं उठता था, मैं कमल के फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ उठता था। मैं थका मरा हुआ कभी नहीं उठा। जी जी जी। से काम करो, जियो। Very nice. Yes, friends, our guest today says live life to the fullest. There is no retirement. Even if you retire from your government services or from the private sector, you should continue contributing something to the society. Keep yourself active and do not retire from life. Live life till the last breath. That's what our guest today has to share with us. Dear sir, hard work और smart work के अंतर क्या है सर? हार्ड वर्क, कहते हैं ना कि अगर हार्ड वर्क पे करता तो गधे सबसे अमीर बन जाता। मेहनत काफी नहीं है। मेहनत को सोच समझ के करो, फोर्स कहाँ लगानी है। आप अगर समझ लो 1 घंटा आपने करना है काम, तो 5 10 15 मिनट प्लानिंग करो क्या करना है, और बाद में 5 मिनट रिव्यू करो कि कुछ उसमें कमी तो नहीं। ये दुनिया में हर सिचुएशन में लागू है।
अगर 1 घंटे में से 10, 15, 20 मिनट प्लानिंग एंड रिव्यू में लगा देंगे, तो वो जो 40 मिनट का स्मार्ट वर्क है, वो 2 घंटे से ज्यादा शायद काम आपको आउटपुट दे सके। ये पढ़ने में मैंने लागू किया है। बहुत लोग हैरान होते हैं, तुम इतना कम कैसे पढ़ते हो? मैं बहुत कम पढ़ता था। बट एग्जाम हो, कुछ हो, इंटरव्यू, इफ यू प्लान कैसे करना है, यू अरेंज सिस्टमेटिक, दैट इज स्मार्ट। यस, एब्सोल्युटली सर, वी एग्री विद यू सर। सर, आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं अभी शेयर है, करना चाहेंगे? आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू। मैं एक छोटा सा डिस्पेंसरी कम हॉस्पिटल खोलना चाहता था। मैं कई सालों से कई कोशिश की, मैं उतना अर्न नहीं कर पाया। क्यों? कम से कम उसमें मैंने प्लान जो सोचा है 30 करोड़ के करीब चाहिए, तो इतना मेरा कभी साधन बना नहीं। तो क्योंकि जितना आता है मेरे पास, मैं मदल में खर्च कर देता हूँ, जोड़ ही नहीं पाता कभी। एनीवे, मेरा इस तरह का प्रोजेक्ट है कि एक ऐसा हो जहाँ कोई गरीब आए कर सके। और एक जैसे साउथ में है ना, अन्न माता या कुछ ऐसे कई नेताओं के नाम पर खोले हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी किचन टाइप हो कुछ। और ये कारपोरेट हाउसेस कर सकते हैं, 100-100, 1-1 हज़ार खोल सकते हैं। तो मेरा ये है कि एक ऐसा हो जहां कोई भी आए, 5 रुपए या 7 रुपए 10 रुपए दे और भोजन कर ले। और एक मेरा ड्रीम है कि कोई ऐसा मैं ऑर्गेनाइज करूं इंडस्ट्री, कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई मोमबत्ती बनाने का, कोई जहां जो मर्जी चलाए जरूरतमंद, जो बुजुर्ग हो, विडो हो, कोई ऐसा मजबूर हो, कोई आए और आए वहां जितनी देर काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है फिजिकल, 2 घंटे 4 घंटे देकर उतना करे, उसको कुछ खाना मिल जाए बाइज्जत, और थोड़ा पॉकेट मनी टाइप कुछ मिल जाए। ये मेरी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं। जी बट जी। आई डोंट नो, क्या No, पता भगवान definitely. कभी पूरा कर दे। No, sir, definitely you will fulfill your dreams. We are with you. We will help you, and we will, collaborate together to fulfill your dreams and create positivity in the world. I हम्म। love the way you said, sir, that I'd love to give a dignified life to no matter who it could be. It could be a widow, it could be a senior citizen, it could be a youngster, it could be just somebody who really needs dignity and respect. And that's what Sir says, that he's going to work on his project. And I'm sure each one of us are going to help him reach and fulfill his dream. Yes, sir. What is it that brings a smile on your face? आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट हमने देखा, वो सीक्रेट क्या है सर? अंदर से ही कुछ वो आता है, आई डोंट नो। लेकिन बच्चे का चेहरा, कोई फूल, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई पत्ती, और फिर स्माइल आती है कि किसी के ऊपर स्माइल मेरे करने से कुछ आ जाए, उसको देख के जो आता है वो स्माइल नहीं, वो समझ लो सिर से पैर तक वो स्माइल होती है, नॉट ओनली फेस, और अंदर दिल की गहराइयों तक वो स्माइल होती जी जी सर, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, एनी वीकनेस यू हैव? है। हाँ, बहुत है। एक बता दीजिए हमें, शेयर कीजिए। शर्म आती है। सुनिए, देखिए, एक तो मैं ना गुस्सा बड़ी जल्दी खाता हूँ। कोई चीज को एक बार बोला, 2 बार बोला, अब काफी ठीक कर लिया है। और कोई मुंह पे झूठ बोलता है, वो भी झेला नहीं जाता। क्योंकि हमने ऐसा कभी किया नहीं। ये बेईमानी को करता है, भ्रष्टाचार करता है, हमने जिंदगी में नहीं किया। कुछ चीजें जो ऐसी हैं, जो माँ बाप का ध्यान नहीं करता, उन चीजों को मैं नहीं देख पाता। तो मैं उन लोगों के साथ रिलेशन में नहीं रख पाता जो माँ बाप की इज्जत। कुछ चीजें ऐसी हैं, वो स्ट्रांग में ही ऐसी लाइकनेस या डिसलाइकनेस है, उनमें उसमें मेरा इतना स्ट्रांग है, आई कांट ओवरकम दैट। यस सर, यस, यस। सर, आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन है या क्या है? व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? सबसे बड़ी ताकत तो मेरी ये है कि एक तो मैं ना, एक कुतरी माजी बड़ी मुश्किल आ जाए जिंदगी में, मैं कभी भी उसको, उतना ही मेरा समझ लो जो, उतना ही मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। और कितनी बड़ी हो, बाद में मैं देखता हूँ ये तो इतनी छोटी थी। उसकी मेरी पावर, मेरी ताकत उठती तब है जब चैलेंजेस सामने होते हैं। और दूसरा क्या है कि मैं पॉजिटिव देखता हूँ। बुरे से बुरा कोई इंसान कहता है, तो मैं देखता हूँ इसमें अच्छा पॉइंट क्या है। प्लीज। तो
ताकत में ये है कि मैं जिंदगी को मजे से जीता हूँ। और मेरा ये है कि जैसे क्रिकेट की 20-20 या 50, प्ले टू द लास्ट बॉल। तो में हिम्मत है। वो कहते हैं, किस्मत फूटी आस ना छूटी पांव में पड़ गए छाले। मैं कभी हिम्मत नहीं छोड़ता। ग्रेट ग्रेट सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वेरी नाइस, बहुत खूब। जी सर, आपको कभी डर लगती है? बचपन में तो लगती थी, अंधेरे में जाते थे, सुना हुआ था भूत बैठा है ये वो। अब कई बार अपने आप से डर लगता जी कि मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं कि जिसमें अपना, मैं जो एक स्टेज है जिंदगी में, एक उम्र तक पहुंचा हूं, वो किए पे पानी फेर दे। तो इसलिए केयरफुल रहना होता है अपना बारे में। क्योंकि इंसान का मन, कोई भी कैसा भी इंसान हो, वो उल्टा 50 चीज सोचता है। तो हक आता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। बट वी हैव टू सी कि मैं अब जो एक, जितना पहाड़ में ऊंचा चढ़ जाए उस ऊंचाई को मेंटेन करना उतना मुश्किल पड़ता है। जितनी आपकी लोगों में नजर में इज्जत बढ़ जाए, लोग गुरु जी बोलते हैं, ये वो बहुत मान सम्मान से देखते हैं। तो मन में यही रहता है कि मैं इसको मेंटेन कर पाऊं ऐसा। जी 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 सर। जी सर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है और क्यों? मुझे बहुत हल्के रंग बहुत पसंद है, जैसे लाइट अंगूरी, खिलते हुए रंग। जो आजकल ये आते हैं ना सॉफ्ट कलर, जो कई बार कार्स वगैरह में मॉडर्न, इंडिया में वो उतने टाइप के नहीं थे जो एक खास उसमें आती। उनमें जो लाइट कलर्स हैं, वो पेंटिंग्स मुझे अच्छी लगती। वेरी लाइट कलर्स, बहुत हल्का आसमानी, हल्का पिंक, इस तरह के मुझे कलर ज्यादा पसंद जी जी सर, जी सर। जी सर, स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और आपका फेवरेट टीचर कौन थे? है। सब्जेक्ट तो मेरा ज्यादा हिस्ट्री भी रहा, मैथ भी रहा। हिस्ट्री भी रहा, मैथ भी रहा। हमारे एक सीताराम जी मास्टर होते थे, वो मैथ के। वो कोई ना कोई पहेली रोज डाल देते थे, छठी सातवीं आठवीं की बात, छठी सातवीं की बात है, पांचवीं छठी सती सातवीं। वो पहेली देते कहते मैं 10 पैसे दूंगा जो हल करेगा। मैं सब खाना पीना रात को दिन में भूल के, कई बार उसी दिन खेलते ग्राउंड में, सारा ध्यान उधर रहता, हार जाता था खेल में। फिर मैं आता भागा भागा, मास्टर जी निकाल लिया, और 10 पैसे देते थे। मैंने ऐसे कई 10 पैसे संभाल संभाल के 20-30 साल तक रखे। लेकिन बाद में मैंने सोचा, उस वक्त मैं नहीं मुस्कुरा, मैं तो खुशी होती 10 पैसे। एंड 10 पैसे कुछ बाई एट हॉट इन दो टाइम्स। मैं 50 साल, नहीं 55-60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 60 साल पुरानी। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कितना डीप था उनका, क्या मोटिवेशन करने का था। तो मेरे को वो ज्यादा अच्छे लगे। वरना उस वक्त से सारे टीचर मुझे लगता है कि मुझे पूजनीय ही लगे। ग्रेट, ग्रेट सर, वेरी नाइस। कोई खास टीचर का नाम बताना चाहेंगे कि आपका, आपको इम्पैक्ट ज्यादा करे हैं आपकी जिंदगी में? ये सीताराम जी मैथ्स टीचर तो बोल रही मैंने। अच्छा। और एक संस्कृत के टीचर होते थे, जी जी सर। उनका धर धर पड़ता था नाम, अभी याद आता है, अभी स्लिप कर रहा है। जी वो बहुत अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे। जी सर। तो बहुत जेंटल थे, बहुत हेल्पफुल थे बच्चों की। कोई समस्या होती थी, कोई और है, उसको बड़ा अपनेपन में टैकल करते थे। तो मैं क्या है ना, ज्यादातर टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उस वक्त कई बार गुस्सा आता था जब मार पड़ती थी, हमारे साथ में डंडे पड़ते थे। जी। लेकिन बाद में जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ, आई थिंक दे वर लाइक, मैं तो समझता हूँ लाइक गॉड्स फॉर मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, एनी मैसेज फॉर द यूथ ऑफ द वर्ल्ड? यूथ के लिए वो गाना होता था, लग्गी वाले कदे भी ना सौंदे तेरी की में अख लग गई। अरे यूथ है, आपका टाइम है जिंदगी में, ये नींव बनाने का और बिल्डिंग खड़ी करने का टाइम है। आप ढिलाई कैसे बरत सकते हो जिंदगी में? आप, मेरे पास, मुझे बड़ा दुख लगता है जब मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट यंग लोग आते हैं। मैं सोचता हूँ पढ़ाई के बारे में पूछेगा, करियर के बारे में पूछा, तो मेरा लव मेरे को छोड़ के चला गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे, फिर करियर के बारे में तीसरे नंबर पे सवाल पूछता है। आप जिस उम्र में
आपको बिल्डअप करना है। उस समय में सोएंगे तो क्या करेंगे? मेरा ये मानना है, मोटे तौर पे किसी की किस्मत बहुत खराब हो तो लक, किसकी बहुत अच्छी हो बचपन से मजा करता है। अदरवाइज होता आधी जिंदगी स्ट्रगल की है, आधी मजा लेने की। अगर आप पहले शुरू की जिंदगी में आप स्ट्रगल कर दोगे, पेड़ लगा दोगे, फसल बीज दोगे, तब बाद की जिंदगी में मजा करोगे। और पहले वाली जिंदगी में मजा करोगे तो बाद का तो मैं क्या बोलूं, अंडरस्टूड है। वर्क लाइक ए डंकी एंड लिव लाइक ए प्रिंस, ये कहावत है। एंड इफ यू वर्क लाइक ए प्रिंस, मे बी यू लिव लाइक ए। Yes, yes, sir. Very nice, very nice. So well said and so, well explained. Thank you, sir. I'm sure the youth and everyone would definitely benefit from sir's message to work hard in the initial years and, live a comfortable retired life or live a happier life. Once you finish your hard work, once you finish your smart work, then you could relax. So he says, don't waste your time as a youth because you have the energy and you have, you're more active and proactive during your earlier years. So yes, sir, thank you very much for that beautiful answer and sharing. Sir, आपका proudest accomplishment के बारे में बता सकते हैं? जब मैं LIC में था तो 7 साल सर्विस की, तो मैंने लगभग 2 साल में फेलोशिप तक सब एग्जाम क्लियर कर दिए, जो आमतौर पे लोगों को 5 साल 10 साल लगते थे। 56 से LIC नेशनलाइज होकर बनी थी और मैंने 74 में ये फेलोशिप क्लियर कर लिया था। और उस वक्त तक देवर 42,000 एम्प्लॉइज इन LIC। फ्रॉम 56 टू 74 आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियर 3 पेपर्स ऑफ फेलोशिप इन वन गो। मुझे लोग कहते पागल हो गया, क्या कहेगा, एक एक कर लो, तीनों गलती हो जाएंगे। हर किसी ने डिस्कस किया, मैंने किया। और मजेदार बात है, मैं पढ़ता भी बहुत कम था, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो 10 मिनट बैठूंगा, उस वक्त ढोल भी बज जाएगा, बम भी फट जाएगा, मुझे पता नहीं लगेगा। फुल कंसेंट्रेशन आई यूज टू रीड। और इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग वाली बात है। ये यूथ के लिए जो आपने कहा, उसमें एक मैसेज और है कि आप देश का भविष्य हो। बच्चे, यूथ देश का भविष्य हो। पहले अपने आप को संभालना सीखो, फिर आपके माँ बाप है, भाई बहन है, परिवार है, और फिर आपका समाज है, शहर है, देश है, फिर पूरा ह्यूमन सोसाइटी है, पूरी दुनिया है। आप इन चीजों में पढ़ के जहां हवाई किले और ये सोशल मीडिया और चैट और इनमें टाइम वेस्ट करते हो, अगर आप टाइम की कदर नहीं करोगे, टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। आप ऐसे सपनों का निर्माण करो, ऐसा चीज का निर्माण करो। और एक चीज में आखिर में, टाइम एक्सटेंड हो गया फिर भी मैं कहूंगा, जी सर। उतने लोग भूख से नहीं मरते जितने ज्यादा खाने से बीमार पड़ते हैं। इसी तरह काम ज्यादा करने से स्ट्रेस कभी नहीं होता। काम पड़ा है उसको देख के सोचते रहेंगे, उससे स्ट्रेस आता है, करने से नहीं आता। मेरे पास 10,000 फाइल भी इकट्ठी हो जाएगी, मैं देखूंगा 100 रोज की करनी, मैं 100 रोज की उठा के करता जाऊँ। करने में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, खाली बैठने से आएगा। जी जी खाली बैठने से अपनी नजर में इंसान खुद भी गिरता है और दूसरों से इज्जत की क्या उम्मीद करेगा। जी जी। अपनी वर्थ मेहनत से बनती है, नेक नीति और मेहनत से अपनी वर्थ बनती है। आप अपनी नजरों में उठोगे, दुनिया की नजरों में भी अपने आप उठ जाओगे। ग्रेट। कोई उसके लिए आपको बहुत अपनी हाई सेटिंग, बढ़िया महंगे महंगे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। गधे को आप बहुत सूट भी पहना देंगे, उसकी कीमत नहीं बढ़ जानी है। यस सर। बंदे की वर्थ जो उसके इनसाइड है, उसकी अचीवमेंट है, उसकी सोच है, ना कि उसके कपड़े, या महंगा मोबाइल ले लिया, या घड़ी ले ली महंगी, या लैपटॉप बहुत महंगा ले लिया, या गाड़ी बहुत बढ़िया ले ली। ये झूठी शान है। ये है मेरा मैसेज। Very nice, very nice. You have, and it's very true and very right, sir. You know, we shouldn't be idle.
we should keep keeping ourselves busy, keep doing something all the time, do some good work or earn money or study something, focus on something that is good, never be idle. जितना आप आइडल रहेंगे, बिना कुछ काम करे बैठेंगे, तो उतना ही स्ट्रेस होगा, सोचते रहेंगे, यहीं पर रहेंगे हम। तो कुछ काम करेंगे, किसी का भला, खुद का भला करे, तो वो सबसे अच्छी बात है। यही है मैसेज हमारा स्पेशल गेस्ट का। तो सर, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर हमारे पास एक कप है। कैन यू सी द कप? इज द कप विजिबल? या फाइन, थैंक यू। इज द कप हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? वैसे तो दिख नहीं रहा, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगर इसमें 5% भी होगा तो मैं इसको 5% भरा हुआ कहूंगा, खाली कभी नहीं कहूंगा। उम्मीद उम्मीद रखो कि आप खुश रहोगे, आशावादी बनो। मैं आशावादी हूं, तो मैं तो इसको आधा किया, अगर 5% भी भरा हुआ तो मैं कहूँ 5% पानी है भी इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, ब्यूटीफुल थॉट, वेरी नाइस। सर, आपको पेट्स पसंद है? पेट्स पसंद कम ही रहे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत शौकीन था, पालता था, किसी उम्र में बच्चे शौकीन थे, लाते थे, लेकिन मुझे लगा कि अपने शौक के लिए हम उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। आपने अच्छा खिला पिला दिया, इज दैट सफिशिएंट? तोते को पिंजरे में डाल दिया, उसको लोहे का डाल दिया, सोने का क्या फर्क पड़ता है? आपने डॉग पाला, उसको प्लेट में डाल रहे हो, फिर डॉक्टर आया उसकी उदासी चेक करने। अरे जानवर में भौंकेगा, खाएगा, चाहे वो रफ खाए टफ खाए। अपनापन जिंदगी है, बढ़िया खाना जिंदगी नहीं है। आप उसके एनवायरमेंट से उठा के अपनी शौक के लिए यू आर मेकिंग समवन प्रिजनर। हाँ, गाय भैंस घर में पालते हैं दूध गाय के लिए, वो एक अलग कैटेगरी में है, वो उसके लिए पालना है। आपके लिए वो तो कोई ना कोई, आप नहीं पालोगे कोई और पालेगा। गाय तो जंगल में नहीं घूमेगी। लेकिन जो पेट्स हम पालते हैं सच, मुझे इस कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा इनजस्टिस लगता है, बिकॉज दे कांट प्रोटेस्ट, दे कांट टू गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। Great, sir. Great, great. You have such depth, such wisdom that you have. That's really nice. To understand life from your perspective. I really appreciate that, sir. Very nice. Very well said. Yes, sir. The next question for you, sir, is आप ज्यादा सुनते हैं या बात करते हैं या दोनों भी? You're a good listener and a good speaker. Up to the early age, say up to 20-25, I was a good speaker only. Used to listen less. Then little bit listen करना किया. But only really, honestly speaking, only around the age of 50 or more, I became a little bit good listener. अभी भी कभी भी वो थोड़ा बीच में सुनने की बजाय मैं गुस्से में आ जाता हूँ जब कोई मेरी नहीं सुन रहा, लेकिन आगे से बहुत फर्क है। मतलब नो इट इज मेनली बैलेंस्ड। ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी नाइस। आपका बचपन का कोई ऐसा घटना घटी है जो अभी तक याद है आपको, फ्रेश है माइंड में? मैं तो क्या बताऊं, कोई विश्वास नहीं करते। मैं तो जिस दिन स्कूल दाखिल होने का 4 साल का था, मुझे याद है जब मैं घुटनों के बल चलता था, उसकी कुछ बातें याद। मुझे को तो बहुत कुछ याद है, लेकिन बचपन में क्या होता था कि हमारे टाइम में ना स्कूल टीचर बहुत पुअरली पेड होते थे। वो प्राइवेट स्कूल होते थे, ये तो बाद बाद में आया कि जो उनको सरकारी ग्रेड मिला। वो बेचारे ट्यूशन के ऊपर करते थे, और मैंने ट्यूशन कभी पढ़ी नहीं। तो वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों को, जो ट्यूशन वाले बच्चों को कल के लिए सिखा के लाते थे कुछ, कि कल मैं क्लास में पूछूंगा, जो नहीं जिसको आएगा उसको पिटाई हो जाएगी। तो ट्यूशन वाला बच्चा, सो दैट जो नहीं ट्यूशन पढ़ते वो मोटिवेट हो जाए। उसमें क्या होता था कि वो मार खा जाते थे, मैं बता जाता था। मैं काबू नहीं आया कभी, मेरे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुझे जरूरत ही नहीं कभी लगी। जी जी सर, यस सर। अगर आपके पास अगर कोई शक्ति आए, सुपर पावर, सुपर हाँ हाँ, पावर शक्ति, कौन सा शक्ति आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ अ सुपर पावर वुड यू लव टू हैव?
मैं तो थोड़ी सी सद्बुद्धि देने की पावर आ जाए, थोड़ी सी अपने आप को दूंगा, कुछ दूसरों को भी दे सकूंगा। मुझे लगता है ये एक चीज मिल जाए, जिंदगी की बाकी तकरीबन चीजें पूरी हो जाएगी। जी जी सर, जी सर, वेरी नाइस। सर, आई हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। जिंदगी में किस चीजों से सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है? एनी टू फॉर ऑल ऑफ अस टू बी सेफ एंड अलर्ट। ये रेड फ्लैग है या डेंजर है? तो ऐसी दो बातें हमको थोड़ा सा बता दीजिए आप। एक, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करना और कर्ज लेना, ये मुझे लगता है कि बहुत। और दूसरा मैं बताऊं, ये मैं कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहा हूं। दूसरा, झूठ बोलना। ये उसका पाप पुण्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये चीजें, झूठ बोलना, आदमी को उसको एक को कवर करने के, ये स्ट्रेस का मुझे लगता है कई बार बेसिक रीजन। एक झूठ को बचाने के लिए आपको दूसरा तीसरा, आपने अपनी इनकम ज्यादा बता दी, फिर किसी को घर बुलाने से झिझकोगे कुछ, ये। और ये जो खर्च, शौक में मोबाइल महंगा, ये वो किस्तों पे ले लिया, ये ले लिया, ये एक ना ऐसा जाल में, एक कीचड़ में फंस जाता है आदमी, जिसमें निकलना बहुत मुश्किल है। जी सर, जी सर, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, डू यू गिव इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ? यस, क्यों नहीं। ये, अगर मेंटल हेल्थ है, आदमी की मजबूरी हो सकती है, चोट लग गई किसी की, वो चाहे बिस्तर पे पड़ा है, पट्टी बंध गई या प्लास्टर लग गया, या किसी के बेचारे की टांगे नहीं है या कट गई, वो तो मजबूरी, वन कैन नॉट डू एनीथिंग। मेंटल जो है, ये आदमी को फिट रख सकती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिब्रूगढ़ में था, 10-12 साल हो गए बात को। मैं सैर करने जाता सुबह 5, 5:30 बजे। एक व्यक्ति, उसका एक हाथ नहीं था, उंगली के नीचे बाजू आधा नहीं था। वो मांगने वाला नहीं था, गरीब मतलब बहुत वेल ऑफ नहीं था, मांगने वाला नहीं था। वो एक लाठी की जरूरत पड़ती, नेचुरल बैलेंस करने के लिए शायद। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर उसने गले में डाला होता, जो कटी हुई बाजू, और वो डांस करता हुआ चलता था सड़क पे। कपड़ों पैसे, तो चप्पल थी या नहीं थी मुझे नहीं याद, पैरों में। तो जिंदगी में हम लोग, ज्यादातर लोगों को देखो, उनका हालत क्या है, ना आंखों में आंसू, ना होठों पे हाय, मगर एक मुद्दत हुई मुस्कुराए। वाह। जिंदगी में जीने के लिए ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी हो, फलाना हो, बंगला हो। मैंने बताया, हाथ नहीं है, कपड़े बेचारे के ढंग के नहीं पहने हुए, चप्पल ठीक नहीं थी पाँव में, एक ट्रांजिस्टर सा गले में डाल के वो गाना चल रहा था, वो डांस करता हुआ चल रहा, ही वॉज नॉट वॉकिंग, ही वॉज डांसिंग। ग्रेट, ग्रेट सर। जिंदगी को जीना सीखो। लोग का पूछो कैसे लाइफ है, वो तो कट रही है, कोई जेल काट रहे हो। मतलब ज्यादातर लोगों का वो गाना है ना, जिंदा हूं इस तरह कि गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। यस। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, ये दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। अरे, जिंदगी को जियो, और जिंदगी भरपूर जियो। आपके आसपास खुशी बिखेरो, फूल बीजो, देख के आप भी खुश रहेंगे। खुशियां बांटो, आपको खुशियां अपने आप बाउंस होके आए। ये जी दुनिया दीवार है, आप बॉल फेंकोगे आपकी तरफ अपने आप आ जाएंगे। जी सर। तो खुश रहो, खुशी बांटो। ये मैं समझता हूँ जिंदगी का, मुझे ये लगता है लाइफ है, पर्पज है, जीना यही है। और भगवान भी खुशी आनंद में है। जो हमारे फिलोसफी है हिंदू में, प्रभु लीला करते हैं आनंद के लिए। ये संसार रचा उन्होंने आनंद के लिए, लीला। लीला मीन्स नाटक टाइप। जी ही सर। एंजॉयज डूइंग ऑल दिस। यस। और आप रोने के लिए लगे हुए हो, जिनको बनाया था भगवान ने, उसने मजे के लिए बनाया था। जी सर, जी सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूब सर। सर, आगे 50 साल, अब से इस क्षण से लेके द नेक्स्ट 50 years, आप कैसे बदलाव देखना चाहेंगे प्रपंच में, या कैसे बदलाव होंगे? एनीवन, आइदर वेज यू कुड आंसर। देखिए, है टेक्नोलॉजी तो सबको पता है। टेक्नोलॉजी तो ऐसी है, वर्चुअल हर चीज में भी, हर चीज 3D में बनने लग जाएगी। ये टेक्नोलॉजिकल तो स्पीड कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से घंटे भर में शायद अमेरिका भी पहुंच जाए, कोई पता नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजिकल है। लेकिन
मुझे लगता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटली आल्सो द मैन विल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट इट। ग्रेट। मुझे लगता है वो उधर से भटक भटक के ही विल कम बैक टू फैमिली एंड ह्यूमन लाइफ। और मुझे तो ये भी लगता है कि किसी एलियंस के साथ भी हमारा मेल हो जाएगा। मेरा बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है यस। एलियंस, आई कीप ऑन रीडिंग स्टडी। तो मुझे लगता है दे आर देयर एंड वी विल मीट देम। यस। और लाइफ हो सकता है हमें हाथ में हो जाए 20-30 साल में, ऐसी उम्मीद है कि यू कैन प्रोलॉन्ग लाइफ। ग्रेट। ब्यूटीफुल। लेकिन उसको जीना कैसे है, जी। रोज की तरह ढोना है, जीना है, ये कला है। मुझे लगता है हम सीखे। यस यस। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर अगर आपको चांस मिला, कोई आपके हाथ में एक टाइम मशीन दे दिए और ये कहे कि आप सर पुराने जमाने में चले जाइए और फिर लौट के आइए, तो यू गो टू द पास्ट, लिव somebody's life and come back, so whose life हाँ, would you like to relive in the past? उसमें उसमें आंसर इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मुझे जो वो जिंदगी उसने जी थी वो जीनी है, या उस पोजीशन में आके अपनी मर्जी से जीनी है। जी जी। वही स्टीरियोटाइप लाइफ जीनी तो हिस्ट्री में पढ़ गई, मैं कल्पना में जी लूंगा, जी जी। मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं। अगर मुझे वो पावर, वो स्ट्रक्चर वो मिले, और फिर मुझे चॉइस अपनी मेंटल मेकअप के मुताबिक मिले, तब मैं कहीं राजा बादशाह बनूं, कोई बड़ा पावरफुल, फिर मैं कुछ कल्याण भी कर सकूं। जी सर। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। सर अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो I call it as constructive criticism. I'd like to repeat that, constructive criticism. तो आपका राय क्या है सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के वो बारे तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तो कभी इंप्रूवमेंट आ ही नहीं सकता। अगर इस तरह से क्रिटिसिज्म हो, और हमें भी करना सीखना चाहिए, उसी बात को बेहतर तरीके से कहें। जैसे बच्चों को माँ बाप कहते तू कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब ही नहीं होना है, तू पास ही नहीं हो सकता, उसकी बजाय ये कहे बेटा तुम्हारी इंटेलिजेंस तो हो, थोड़ा ध्यान दो तो बहुत अच्छा कर सकते। अरे तुम खेलते तो बहुत बढ़िया हो, बजाय इन्हें क्रिकेट नहीं खेलना, साथ में खेल में लगा, खेलते तो बहुत बढ़िया हो। और ये भी है कि वो भी खेल लो, थोड़ा पढ़ाई भी इसी तरह से ध्यान लगा के करो, कितना अच्छा हो जाए, दोनों में अच्छे हो जाओगे। दिस इज कंस्ट्रक्टिव। में? उसी बात को थोड़ा Great, great, very nice. I love the example. Parents should be very careful while criticizing your children. Give them constructive criticism such that they are not hurt and scarred for life or suffer from childhood trauma. So parents, be elders, teachers, तो बच्चों को ना डांटिए नेगेटिवली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए. दैट इज व्हाट आवर गेस्ट इज शेयरिंग विद अस, टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू एनीवन यू कम इन कांटेक्ट, especially parents and teachers, because the minds of the young little children, are very innocent and tender. Let's develop a beautiful world. Dear sir, if I just like to ask the question like this, on a scale of 1 to 10, on a scale of 1 to 10, how much would you rate yourself with regard to forgiving others? दूसरों को माफ कर देने में 1 to 10 में आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे आप? अब तो 9 और 10 ही कहूंगा, जी आगे नहीं। जी जी। अब तो कई लोग मेरे को इस चीज के क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों आप, जो उसने ऐसा किया था आपके साथ, उसने ऐसा, आप उसी, कोई बात नहीं, जी उसने किया, उसका स्वभाव था, मैं कह रहा हूँ मेरा स्वभाव। right sir. Beautiful, very nice sir. Now we are going down to the rapid fire round. Okay, rapid fire round is 1 word, 2 words, or 1 sentence. Usse zyada nahi. It's like the last round of this interview session where we got to know who is the real Mr. Ashok Kumar Gupta. Now we have the rapid fire round with a few questions, like they are just 1 word or 2 words maybe. Third, ice cream or cake? केक। You could say both also. 3 options: ice cream, cake, or both. बहुत Okay, बहुत मिक्स both. करके बहुत मजा आएगा। Same to you, sir. Same to you. जी जी. Strawberry flavor or chocolate flavor? स्ट्रॉबेरी। Summer season, winter season, rainy season? समर एंड रेनी आई बोथ एंजॉय। Okay, sir. Great. Sir, आप सफर करेंगे ना, तो आप कहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं? लैंड, वाटर और एयर?
I think land. Okay, sir. Water enjoy, land comfortable. Great, great, sir. City, village, where do you like to spend your time? Village, if it has basic amenities, I like a village. बेसिक चीज खाने पीने को मिलती हो, सब चीज जो ही चीज हो, इंटरनेट हो, मान लो सब ऐसी बेसिक नीड्स हो, आई लाइक विलेज. ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस. सर, अगर आप किसी का मदद कर दिए, डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न व्हेन यू हेल्प समबडी? अभी नहीं, अभी नहीं, कभी करता था. अब तो कई लोग मुझे कुछ वापस भी करने आते हैं, मैंने वर्थ दैट. तो मैं उनको कहता हूँ कोई स्टूडेंट है जिनकी मदद हुई थी, अब कुछ बन गए, तो दे वांट टू पे बैक. आई से नो, कीप लुकिंग अराउंड यू एंड हेल्प समवन. Wow, great, beautiful, very nice. So sir is, doing work, serving the society without any expectation. That's very nice, sir. And he's very honest. He says he has been transforming his mindset and, not expecting anything in return. Sir, आपका आइडिया, आपके मन में आपका सोच कैसा है? एक अच्छा दिन क्या होता है? What is the idea of a beautiful day? हाँ, अच्छा दिन, रात को नींद अच्छी आई हो, दिन में खाने पीने को मिल जाए, कुछ घंटा आधा घंटा हम यहाँ नीचे सीनियर सिटीजन 1 घंटे के लिए शाम को बैठते हैं, गपशप होती, गाना वगैरह होते हैं, पॉलिटिक्स सब डिस्कस होता है. और किसी गौशाला या मंदिर कहीं जाके, या किसी बच्चों के कहीं होते हैं ना, वहां कोई मैं बिस्किट वगैरह के पैकेट बांटा हूँ, ये 3-4 चीजें जिंदगी में आ जाए, जी, अपना परफेक्ट डे हो गया. जी सर, वेरी नाइस. सर, आर यू अ गुड कुक? चाय बनानी बहुत बढ़िया आती थी. अब मेरी भाई इतना बढ़िया बनाती थी, खाना सब भूल गया. जी, जी. कभी मजबूरी में अकेले रहते थे, अनमेरिड बाहर जॉब करते थे, तब थोड़ा बहुत चावल चुवल सीखे थे, रोटी गोल टेढ़ी मेढ़ी कुछ सीखी थी, सब भूल भुला गया. यस सर. अगर आप में खुद में, इन योर ओन सेल्फ, वुड यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, एंड इफ यस, व्हाट इज दैट चेंज? खुद में कोई बदलाव लाना चाहेंगे तो वो क्या है सर? खुद में मैं चाहूंगा कि एक तो मैं थोड़ा गुस्सा कम करूं, और थोड़ा मैं, और अपने ऊपर ध्यान दूं. वो इतनी चीजों में उलझ के मैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं ज्यादा दे पाता हूँ. हालांकि इतना नहीं, मैं डेली वॉक, एक्सरसाइज, साइकिलिंग हर चीज करता हूँ. थोड़ा मैं और रेस्ट, थोड़ा बीच में 10-15 मिनट और बैठूं. मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा सा मुझे कमिटमेंट 5% कम करनी चाहिए, ज्यादा नहीं. जी, जी, जी सर. जी सर, वेरी नाइस. सर, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन? सुबह सुबह दोपहर में या शाम में आप एक्टिव रहते हैं? सुबह से शाम तक ही रहता हूँ. कभी मैं 4:30-5 बजे उठ जाता था, आजकल 7 बज जाते हैं. शायद उम्र से सही मांगता है, आई डोंट नो. लेकिन जब मैं उठता हूँ रात तक 10, 10:30, 11 तक बिस्तर पे नहीं जाता. एक्टिव. मुझे नहीं लगता 5 मिनट भी कहीं बैटरी डाउन होती है. ग्रेट, ग्रेट, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. सॉल्टी फूड और स्वीट फूड? देखो, स्वीट मेरी थोड़ा हाँ वीकनेस जी. ही है. हाँ, हाँ. मीठा, क्योंकि वजन मेरा 20 साल में 1 किलो नहीं बढ़ा. पहले अच्छा. 20-25 साल में 1 किलो वजन नहीं बढ़ा. और जी, ना मैंने कभी खाने पे कोशिश की. मेरा खाना ही इतना है, जी, एक चिड़िया जितना मेरा खाना है. जी. लेकिन मीठा तो ये है. फेवरेट मीठा कौन सा है, मिठाई आपका? बढ़िया बढ़िया हो, मतलब गुलाब जामुन हो गरम गरम, अच्छा. वो भी जलवा आता है. और जी, कोई ऐसी चीज हो, गाजर का हलवा या मूंग की दाल का हलवा, पर उसमें ड्राई फ्रूट खूब हो. जी, जी, जी. ड्राई फ्रूट मजेदार खूब हो. ये बढ़िया बनी हो, जो 1 किलो चावल में 20 ग्राम चावल डाल के बने, बस 1 किलो दूध में, और खूब ड्राई फ्रूट हो, अब मजेदार रबड़ी टाइप. जी, जी. We wish that you get something sweet to eat today after the interview. Yeah, I do. Yes. All 3 meals I have a little bit sweet. Wow. Every meal. Wow, great, sir. Beautiful. Excellent. So you're an introvert or an extrovert? I think both. Even in the childhood, I was very deep thinking myself. And speaking, Ji. both, I think both are equally Great, great. well. You now, हम लोग मन में ज्यादा, we live more in our mind most of the time. जब बैठते हैं खामोशी से हम लोग ऐसे, contemplating. Do you live in the past, present or future? अपने आप को ज्यादा जब सोचते हैं तो कहाँ पाते हैं आप? मुझे पुराने मुझे जमाने की यादों के साथ, या अब, या फ्यूचर? 80% टुडे. यस.
10 maybe roughly, I can't calculate, 10% maybe future, 5-10% memories of the past, 80-85% today. Great, great. Applaud you for that. Very nice. बहुत good. Very nice. We should live in the present and give some importance to the past and as well as the future. I like it, sir. The way you put it very well. You put your thoughts very well on that question. Very nice. Sir, do you like socializing or you like me time? अगर थोड़ा वक्त मिला किसी के साथ बातें करना या फ्रेंड्स के साथ या के साथ. I enjoy socializing. Oh yeah, that's nice. Yes, beautiful. ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा काम करते हैं या दो? Both. You think and do. ज्यादा काम ही करता हूँ, सोचता तो उतना हूँ क्या करना है. जी सर. कभी था बचपन में सोचता, अब तो मैं सोचता हूँ play, 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 play. Do it. Yes, you're more of a doer now. Right. Beautiful, sir. Fresh food or fried food? Actually, fresh food I like, लेकिन fresh can also be fried. Yes, I agree And with that. fast food I don't like. Yes. अब पूरी छड़ी तो बात लग गया, पूरी हलवा. जी sir. I agree with that. Very nice. Beautifully said. You're very conscious. You have a lot of wisdom from here. You're thinking from here and answering. You're very, very sharp. Yes, sir. So when I asked the other participants, or you could ask, you say the guests, fresh food or fried food, then they will say fresh food. So, but you have said when you fry a puri, when you have puri, it's fried, fried, but at the same time fresh. So then that is really a wow answer. Great answer. Beautiful. Very nice. I like it. Yes, sir. You like to eat home cooked food or food from out? Both. अभी देखो मेरी वाइफ तो इतना अच्छा बनाती थी, one could not think of outside food. वो तो 20 साल 30 साल पहले भी किसी ने खाया गया. अब कुक यहाँ बनाता है तो उससे कई बार बाजार का अच्छा लगता है. वेरी नाइस. सर, आप अगर मौका दिया गया थोड़ा सा टाइम बीच पे बिताना चाहेंगे या एक फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, कौन सा चुनेंगे आप? द बीच और द फॉरेस्ट? Forest. You'd love to sing and dance, or I'll just put the question in the right way. You'd like to sing, or you like to dance, or you like to do both? Sing. Dance I don't know, and I don't know. Okay, but you are from Punjab, right? You have them. हाँ, वो थोड़ा चला देते गाड़ी, आती नहीं आती है. जी सर. But I love that beautiful dance form of Punjab. बंगला. Yes. और काम चला देते हैं गाड़ी. जी. वेरी नाइस. अगर आपको चांस मिला, एक अच्छी बुक है आपके सामने और अच्छा म्यूजिक भी है, तो आप क्या चुनेंगे? अरे क्या है, म्यूजिक लगा के बुक पढ़ता रहूंगा. दोबारा दोहराइए, क्या कहा आपने? म्यूजिक ऑन कर दूंगा, बुक पढ़ता रहूंगा, दोनों मजा. Very good. Very, very smart, very intelligent, very knowledgeable, very nice. Excellent, sir. So this is the last question for the day. So please, sorry, thank you to Hey He. 3 magic words. ये मैजिकल वर्ड्स ऑलरेडी पहले से हमको मालूम है, हमारे पेरेंट्स टीचर्स सिखा दिए हमको. 3 मैजिक वर्ड्स, दैट इज प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू. तो आज आपसे हमको और 3 नया मैजिक वर्ड्स का रिक्वेस्ट है. कैन यू शेयर द 3 मैजिक वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ जर्नी? It could be any positive word like, hard work, smart work, don't procrastinate. Yeah. Any 3. Work, earn, and help. Great. I'd like to repeat our guests' 3 magical words for today. Work, earn, and help. So nice. Apart from please, sorry, and thank you, work, earn, and help. These are the 3 magical words which we'd like to sign off. We'd like to thank our guest for all the time and energy that he has spent today with us. Sir, बहुत धन्यवाद sir. Thank you very much. धन्यवाद आपका. Thank you sir. It was a pleasure. बहुत मजेदार था. जी सर. दोबारा फिर आएंगे हमारे मंच पर? आएंगे सर? बिल्कुल, मैं तो खाली हूँ. जी. जब कहेंगे. जी सर. आप तो खाली नहीं है, आप तो बहुत बिजी है. बहुत मुश्किल से मिला आपसे टाइम. Not tired. Yes.
thank you for giving your time. You have a busy schedule. I know that, sir, that you have a lot of work that you are doing for the youth and for the on the international space, and as well a lot of work for the needy people. तो आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमको दे दिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दोबारा जरूर हमारा मंच पर आइए. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नई खुशी होगी अगर मेरा मैसेज एक व्यक्ति को भी मोटिवेट कर गया तो मैं समझूंगा मेरा टाइम अच्छा खर्च हो गया. जी सर, डेफिनेटली विल बी मोटिवेटेड सर. तो आई हैव ऑलरेडी बीन मोटिवेटेड एंड डेफिनेटली द अदर्स टू. थैंक यू सर. Have a lovely time, dear friends. Till we meet again with the next guest. Thank you so much for being patient. For you and your organization, well, best wishes for you. Thank you very much.